Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So before I proceed, let's get started with today's topic list. Today is 2nd of November. The first topic is India target net zero carbon emission by 2070. So official statement coming from the Prime Minister, and he has talked about 2070 where India would be looking forward with a net emission. Second is empowered panel of secretaries to monitor the Gati Shakti project. Third, rescue guided launched for Ganga's river dolphins. Second last is Australia recognized COVID vaccine, that is a Covaxin. And the last is Infra and Solar Alliance, India's climate vision. So this is basically an explained page from Indian Express. We'll discuss that. This is again relevant in terms of editorial. Apart from this, there would be some MCQ based questions, और ये जो questions होंगे current affair पे based होंगे, so that it can help you in the upcoming prelims examination. And without any further delay, let's get started. Those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, that is India target net zero carbon emissions by 2070, something which is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement. Now, officially, the Prime Minister of India has announced that India looks forward 2070 as a net zero carbon emission. Some important point, because we have discussed this news lot many times, but यहाँ पे कुछ important points जहाँ पे clarity आई है इंडिया की तरफ से about the date, right? Previously इंडिया ने कोई commitment नहीं रखी थी global forum पे, खास करके इस तरह के जो multilateral meetings होते हैं वहाँ पे अभी तक इंडिया ने declare नहीं किया था, but जो COP26 की meeting हुई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने categorically कहा है कि 2070 is a date where India is looking for a net zero emissions target. तो बात करें इंडिया हैज promised its cuts on the emission of net zero by 2070, missing a key COP26 summit which was held, और ये टारगेट की गई है कि by 2050 we would be substantially progressing in terms of that. And this is for the very first time that India has set a net zero target in Glasgow summit. What is this Glasgow summit? This is COP26, right? So make sure आपको नाम से भी, summit के नाम से भी याद हो, जिस तरह से पेरिस क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद ग्लासगो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. इफ यू टॉक अबाउट नेट जीरो और बिकमिंग द कार्बन न्यूट्रल, इट मीन्स कि कुछ एडेड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है उसको कम करना और उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी. Now, this is a graph that will help you understand about the biggest emitters in the world. India की अगर बात करें, India is ranked 4th in terms of the carbon emitter. India की ranking 4th है. Factually, this is important for your mains and prelims also. Now, when it comes to other countries, here is the China, which has the number 1 per capita in terms of basically carbon emissions. Number 1 पे China है. उसके बाद United States, then European Union. यहाँ पे जो European Union है, this includes UK also, right? And India with 2597, followed by Russia. So these are the 5 important countries in terms of emitter of carbon dioxide. तो ये आपके लिए काफी important है. Now, China has announced, अपने उन्होंने प्लान बताए हैं जहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी की बात चाइना ने 2060 तक कही है. US और यूरोपियन यूनियन हैज सेट द नेट जीरो टारगेट बाय 2050. और व्हाट इज इंडियाज टारगेट? इंडियाज इज 2070. द मेन एम ऑफ ग्लासगो कॉन्फ्रेंस और COP26 की अगर बात करें, इट्स टू एग्री टू कर्ब द कार्बन इमिशंस फास्ट इनफ इन द ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक की बात कही गई है. Now the world is already warmed by 1.1 degree Celsius, that is 2 degree Fahrenheit, right? Now India's roadmap की अगर बात करें, so India specifically has said by 2030 it will ensure that 50% of its energy would be sourced from the renewable sources, right? तो कोशिश ये की जाएगी जहाँ पे अभी हमारी कोल की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जाए. And India is also committed to reduce the carbon emission until 2030 by billion ton. So this is not something that India would achieve net zero 2070 में अचानक से और कोई substantial बहुत ही magical कुछ काम हो जाएगी, ऐसा नहीं है.
इंडिया हैज़ टू गो इन अ प्रोग्रेसिव मैनर्स, वी हैव टू वर्क सब्सटैंशली, हमें धीरे धीरे इस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट वी हैव टू चेज द टारगेट फॉर 2030, देन 2050. After 2050 we can reach to the 2070. So this is a chronology that you have to understand. Now India would also reduce its emission intensity per unit of the GDP, which is less than 45%, and India would also install a system जहाँ पे ये कोशिश की जाएगी कि 500 gigawatts तक की renewable energy by 2030 and 50 gigawatts increase from the existing target. So these are some of the India's potential roadmap that can have बेसिकली यू कैन से जो टारगेट हमने सेट किया उसको अचीव करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रोड मैप होगी. नाउ इंडियाज नेट जीरो प्लेज. इंडिया इज अ वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर, जो मैंने आपको मैप में दिखाया. उसके बाद चाइना है, फॉलोड बाय यूएस, देन यूरोपियन यूनियन, एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ नंबर इज रशिया, राइट. सो इट इज ह्यूज पॉपुलेशन की अगर बात करें इंडिया की पॉपुलेशन, सो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर किया जाए देन वी हैव लोअर मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट. जो emissions है in terms of other economies, we are emitting less. And India emits 1.9 ton of CO2 per head of the population compared to 15.5 ton for the US and 12.5 ton of the Russia. Factual point, very important for your mains and prelims. ये सारे points आपको ध्यान रखने हैं. If you're writing, make sure आप ये point जरूर examination में mention करें. Climate finance, which India already has advocated and reiterated about it. So the Prime Minister has said climate justice के लिए ज़रूरी है कि हर developed countries अपनी contributions दे, 1 trillion climate finance की तरफ assistance दे, so that जितने भी developing countries हैं वो अपने जो most vulnerable aspects हैं उनको कम कर पाएँ और ये कोशिश कर पाएँ कि जो कार्बन इमिशंस हैं उनको रिड्यूस की जा सके. सो फॉर दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, और क्लाइमेट फाइनेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप में इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, एंड इवन यू कैन हैव अ मेंस क्वेश्चंस, राइट. टू मेक श्योर यू हैव एम्पल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ऑल्सो. Now the second news from Indian Express: empowered panel of secretaries to monitor Gati Shakti, something which is important for your general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sector. PM गति शक्ति स्कीम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सारे लूप होल्स को खत्म करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स पे. So recently the central government has constituted a 20-member of empowered group of secretaries. This is known as EGOS, right? ये मॉनिटर करेगी मैकेनिज्म जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें, डेवलपमेंट्स की बात करें, पीएम गति मास्टर प्लान को उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज अ नेशनल मास्टर प्लान which would be something very important for India in coming next to 5-10 years, right? मेंबर ऑफ ग्रुप की अगर बात करें, दिस इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. जब भी कोई ऐसी बड़ी ग्रुप बनती है नो वेयर हाई लेवल ऑफ secretaries are there, mostly this is being headed by cabinet secretary, right? It includes secretaries from 17 ministries and will review and monitor the implementation of the work. तो जो members होंगे उसके यहाँ पे सारे के नाम mentions हैं. You can pause this video, you can read out the entire member from here. Although ये आपके exams के लिए ये वाले points बहुत ज़्यादा important नहीं है. They would only ask who is heading this. So the answer would be Chief Secretary. About PM Gati Shakti, although I have discussed this, but just to give you a brief idea how PM Gati Shakti national जो project है वो किस तरह से काम करेगी. This is National Master Plan for Multimodal Connectivity. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म करने की कोशिश की गई है वेयर ऑलमोस्ट 16 मिनिस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनको एक साथ क्लब किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, सो दैट देयर कैन हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो ये पूरा मेन एम है. गति शक्ति के बारे में आप अगर आपको ब्रीफ जानना है तो ये आप जरूर आपको इतना जानना होना चाहिए, राइट. नाउ इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट लाइक भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटर, ड्राईलैंड पोर्ट्स और उड़ान. तो गवर्नमेंट की उड़ान एज उड़े देश के आम नागरिक, तो इस तरह के जितने भी स्कीम्स हैं उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड दिस प्लान वाज लॉन्च्ड एज अ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, जहाँ पे एम की गई थी टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो ये पैसे बचेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के अलग एस्पेक्ट्स में लगाए जा सकते हैं, अलग सेक्टर्स में यूटिलाइज किए जा सकते हैं. Now PM Gati Shakti cut out the logistic cost, reduce the turnaround time and increase the cargo handling capacity. Terms of reference की बात करें,
which is given to the empowered group of secretaries. जो empowered group of secretaries हैं उनकी जो logistic divisions होगी, that will act as a secretariat to the empowered group of secretaries. और there is some TOR, this is known as term of reference. तो किन किन चीज़ों पे उनको काम करना है, उनको assignments दी गई हैं कि इन particular concerns पे आपको काम करना है. So first is the review and monitor of implementation of national master plan to sustain the logistic and efficiency. ये पहली term of reference है. उसके अलावा टू सेट आउट द प्रोसीजर्स एंड डेफिनेट फ्रेमवर्क, जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशंस की जाएगी जितने भी कंस्ट्रक्शंस के वर्क है, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, ये सारे काम जो है इनकी यूटिलिटी सर्विसेज को एरिया बाउंड अप्रोच किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो पायलट बेसिस पे की जाए. अलाइन वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑन अ कॉमन इंटीग्रेटेड पोर्टल दैट सर्व एज अ स्टेक होल्डर फॉर ऑल. एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगी जहाँ पे जितनी प्रोग्रेस हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उसको रिपोर्ट की जाएगी, जो लूप होल्स है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे और जो ओवरऑल जिस तरह से ये लूप होल्स को खत्म करनी है, जो प्रोग्रेस को स्पीड अप करनी है, वो इस एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे पोर्टल पे अवेलेबल होंगे. Addressing the demand side requirement of ministries concerned would be the another terms of reference that was given by the कमेटी. बेसिकली जो सेक्रेटरी हैं, खास करके अगर बात करें लॉजिस्टिक डिवीजन से, ये इनको प्रोवाइड करेंगे. Now the other news, rescue guide launch for Ganga's river dolphin, something which is important for general studies paper 3, conservation, environmental pollutions and EIA. जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक नई गाइडलाइन दी है. You can say this is a kind of manual which is being provided for the release of standard Ganga's river dolphin. Again, something which is very important from your examination perspective. Prelims के लिए काफ़ी important है इस तरह की questions. So the document has been prepared by the Turtle Survival Alliance of the Environment और Forest Climate Change, जो EFCCD कहते हैं. उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली इसके अंदर काम करती है. So they would guide, they have drawn the experiences of 25 Ganga's dolphin that was stranded in irrigation canals. So the manual is endorsed by the IUCN Cetacean Specialist Group. जो Cetacean Specialist Group है उसके एक्सपर्ट ने ये बनाई है. Cetacean is the family of dolphins. So this is the image of the Ganga dolphin which you can see. अगर इसकी IUCN status की बात करें, this is endangered. Total population as of now is 1200 to 1800. This is a scientific name, Plantatia gangetia, and the weight is around 330-74, लेंथ इज अराउंड 7 to 8.9 फीट और हैबिटेट जो है ये कंप्लीट फ्रेश वाटर रिवर्स में रहती है. अबाउट गंगाज रिवर डॉल्फिन बात करें, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर मेनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो एंड इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड. मैंने आपको बता दिया शेड्यूल 1 ऑफ जो नेशनल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर. उसके बाद अपेंडिक्स 1 ऑन द साइट्स की जो खास करके कन्वेंशन है उसमें भी लिस्टेड. Now the species global population is estimated around 4,000 and it is mostly found in the Indian subcontinent. So if it is being asked in examination, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए तो mostly you have to answer that it is found in Indian subcontinent. And the dolphin often accidentally enter in the canal in the northern India and are unable to swim against the gradient. जिस तरह से रिवर की फ्लो जिधर की तरफ है वहाँ पे उस फ्लो के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाती है एंड दे नीड फ्रेश वाटर टू लीव, राइट. दिस इज द रीजन. बेसिकली बहुत सारा अगर आप देखोगे इस मैंने स्टेटमेंट में बताया 25 जो गंगास डॉल्फिन है दैट वाज स्टैंडर्ड इन इरिगेशन कैनाल, राइट. नाउ हैबिटेट ऑफ गंगास रिवर की अगर बात करें, द डॉल्फिन वेयर फाउंड थ्रू द गंगास, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड जो संगू रिवर है नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. And the Ganges River's dolphin is a global priority and is an indicator of healthy aquatic water system. ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ये डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी पूछती है, राइट. तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको ध्यान में होने चाहिए कि जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है इज अ इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एक्वेटिक सिस्टम. नाउ द अदर न्यूज, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज कोवैक्सीन वैक्सीन. दिस इज अबाउट जनरल स्टडीज पेपर 2. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ. तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी एज अ वैक्सीन वेयर इंटरनेशनल पैसेंजर वुड बी अलाउड टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, राइट. एंड दिस रिकॉग्निशंस कम आफ्टर द थेरेप्यूटिक गुड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, उन्होंने परमिशंस दी है कोवैक्सीन को। इससे पहले जो कोविड शील्ड है विच इज built by India, which is a formula of AstraZeneca, उसको भी इंडिया में अप्रूवल बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया। सो दिस इज अ सेकंड वैक्सीन, कोवैक्सीन इज अ सेकंड वैक्सीन टू गेट अ अप्रूवल। एडवांटेजेस ऑफ दिस डिसीजन की अगर बात करें, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, इट वुड बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट हु आर प्लानिंग टू मूव ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज, द प्रोफेशनल वेटिंग फॉर टू ज्वाइन द एजुकेशन कोर्सेज एंड द पीपल हु वांटेड टू रिटर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर जॉब। तो ये बहुत मल्टीपल डायमेंशन है जहाँ पे इसके बेनिफिट्स होंगे, एंड इट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ट्रैवल ऑफ skilled and unskilled worker to Australia. The move allow those who have got both doses of the Covaxin in the country. और इस इम्पैक्ट की क्या डिसीजन होगी इंडिया में? विद रीसेंट अनाउंसमेंट, ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू ग्रांट रिकॉग्निशंस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन्स। दो वैक्सीन्स हैं इंडिया के, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेज्ड द डिसीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ये इस तरह के जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के इमिग्रेंट्स है जो वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, स्टडीज़ करते हैं। सो वी हैव सब्सटैंशियल नंबर ऑफ इंडियन हु इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। Now, Infra and Solar Alliances India Climate Version. This is basically a kind of editorial which I'll be discussing with you. ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 3, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस और जो EIA के टॉपिक्स हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। So the Prime Minister of India would launch a new program to secure the स्ट्रेंथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल आइलैंड। यहाँ पे डिजास्टर्स को लेकर के बात की गई, कैसे डिजास्टर रेजिलियंस बनाया जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट और IRIS is a major initiative by the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure. This is known as CDRI. बहुत ही important step है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी important है, right? This is started by India in 2019. Now, what is CDRI की अगर बात करें, एक एफर्ट्स है जहाँ पे क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाएगी। ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, विच इंक्लूड US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, इवन भूटान, श्रीलंका, जापान। दीज आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ कोलिशंस। तो टोटल नंबर अगर आप बात करेंगे, दिस इज 26, करेक्ट। द कोलिशन वुड प्रोवाइड एंड नॉट क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोलिशन है किसी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, रैदर इट इज ट्राइंग टू बी अ नॉलेज सेंटर फॉर द मेंबर कंट्रीज टू शेयर एंड लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हाउ वी कैन हैव अ disaster proofing infrastructure, right? The main aim is to build a concept, to build an idea that how we can improve. Now it will work towards making existing and upcoming infrastructure for the member countries, जहाँ पे एक robust, resilient जो disaster related problems है, which include floods, heat, cyclone, forest fire और rain, इनसे कैसे बचा जा सकता है? What are the preventive measures that a country can take in terms of building any infrastructure would be the part of this. And the aim of CDRI is to minimize the damage and disruptions, right? Now, has India taken any global initiative before CDRI? ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। Yes, India has taken. This is a second step. इससे पहले इंडिया ने जो स्टेप्स लिया था, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विच वाज इन 2015 ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट चेंज। जो PCC हुई थी उस टाइम पे ये डिसीजन लिए गए थे। और ISA जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट लार्ज स्केल हार्नेसिंग, बेसिकली जो लार्ज स्केल हार्नेसिंग एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। सो जो सोलर एनर्जी की एक्सप्लोरेशंस हैं उसको बढ़ावा देना। जितने भी इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं, द रीजन विच कम इनटू द इक्वेटोरियल रीजन, उस कंट्रीज से सोलर एनर्जी के पार्ट उनको मेंबर्स बनाया गया, सो दैट दे कैन हैव मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सो जितने भी इक्वेटोरियल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन्स है, दे गेट सफिशिएंट लाइट, राइट, और थ्रू आउट ईयर ये लाइट वहाँ पे मेंटेन रहती है, विच इज सफिशिएंट टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ मेनी कंट्रीज इन दिस बेल्ट। So this requirement can be fulfilled by the ISA, that is International Solar Alliances. Or ISA is working towards boosting the use of solar power,
मेनली बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, और ये फैसिलिटेट करती है रैपिड मास डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। और ये होप की गई थी कि या इस तरह के डिमांड से जो कंट्रीज हैं, जो स्टैंडिंग इक्विपमेंट से ग्रिड है, वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट भी प्रमोट की जाएगी, राइट। सो देयर आर टू वे, वन इज रिसर्च एंड वन एट द सेम टाइम यूटिलाइजिंग द सनलाइट फॉर द सोलर अलायंस कंट्रीज। ना उसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दिस इज OSOWOG प्रपोज की गई, एंड द 100 country was member. What was the idea? The main idea was to stabilize energy supply, overcoming the load of natural fluctuations, और availability of sunlight जो है उसकी potentially use करने की बात कही गई है all the time. ICA जो और जो CDRI, its attempt to India claim the climate mission leadership. This shows that India is committed to a global level, जहाँ पे इंडिया ने ये प्रूव किया है कि we are committed to ensure कि हर एक कंट्रीज को इसकी बेनिफिट हो, और none less than 100 countries are being benefited also, and both have received support from the developing countries as well as the developed countries. तो इस इनिशिएटिव को और भी जितने कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया हुआ है। Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. So for the first question, the correct option is C. For the second question also, the correct option is C. Today's MCQ, consider the following statement regarding the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission. It aims to boost entrepreneurial innovation among SC student and SC Divyangjans. The mission is under the Ministry of Skilled and Entrepreneurial. तो आपको बताना है इसमें से correct options कौन है. If you know the correct answer, do let me know in the comment section down below. Second question, Toropex 21. It is an exercise been conducted by the Pacific Ocean region. It is a biennial throttle lever operation readiness exercise. What you have to do? You have to choose the correct option and write it in the comment section down below, right? So do participate, write in the question answer series. And this was all about the daily news and editorial analysis. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.